Hi guys, welcome to the new video. Hope so you all are good. And today I'm going to talk about how you can save money in the UK as an international student. It is not only about UK. If you are an international student and studying abroad, these tips are going to be helpful for you guys. As we all know, UK is an expensive country to live and study. So you should know these techniques how you can save the money as an international student. इसमें मैं आपको कुछ ऐप्स भी सजेस्ट करूंगा जो आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं और एंड आई नो आप में से कई लोगों को पता नहीं होंगे इस चीज के बारे में और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने के बाद भी पता नहीं होती कि क्या क्या चीजें यूनिवर्सिटी या फिर सिटी आपको प्रोवाइड करती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उसी चीज के बारे में आपको अवेयर करने के लिए दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। And before starting, I would like to say if you haven't booked your accommodation, the link would be in the description box below. If you book it through my link, just let me know on Instagram or in the comment section. I'll keep that in mind. And after booking, you can get your cashbacks and Amazon vouchers, which will be helpful for you guys. So without wasting any time, let's start this video. So guys, the first thing which will help you in saving your money is creating a budget, and budget combines of three things: your expenses, your income, and how much do you want to save per month. For example, now let's categorize different things. Like for example, expenses, there are 4 categories. First is your rent, second is your food and groceries, third is your transportation, and fourth is your entertainment. Now rent is something that you cannot change. It is unavoidable because that would be a fixed income that you have to pay per month. But how you can save money in rent? Instead of taking a studio, you can take a en-suite because studios are really expensive. They are above £700 and it can go up to like £1,000 per month. But if we compare it by the en-suite, it is around much more cheaper, £400-500. You will get an en-suite per month. Then comes the foods and groceries. How you can save by not eating out too much. In a month you can go out twice, that is fine. But if you are going regularly like every week, so that is something that will affect your budget. You have to keep in mind that food and groceries makes a big difference. कि आप ज़्यादा बाहर जाओगे तो obviously आप बाहर खाओगे रेस्टोरेंट्स में तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, and if you are cooking at home it will be much more cheaper, and it's always good if you eat your if you cook and eat your food, because always going out is not a right option for you guys. Then comes the transportation. Transportation में आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे अपना मनी सेव कर सकते हो? By taking the accommodation as close as possible. जैसे मैंने आपको accommodation वाली वीडियो में बताया था कि accommodation आप पास बुक करो, जितना ज़्यादा दूर लोगे आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, आपको क्लासेस अटेंड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे यूके का वेदर ऐसा होता है कि आपको हर पूरे साल यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठंड का ज़्यादा टाइम होता है, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती है कि आपको लेक्चर करने के लिए भी आपको पहले ट्रांसपोर्टेशन लेना है, बस से जा रहे हो फिर आप अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो अब जैसे मैं खुद की बात करूं, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी यूनिवर्सिटी से वॉकिंग अराउंड 15 मिनट्स वॉक है, मैं आराम से चला जाता हूं, और मेरे को कभी बाहर जाना होता है जब भी ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। अब स्टिल इफ यू आर यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन, हाउ यू कैन सेव द मनी? आप अगर ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कार्ड बनता है। लंदन में ऑयस्टर कार्ड होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कार्ड बनवा लो, जिसमें आपकी 1/3 हो जाती है ऑलमोस्ट। आपको जो भी अगर रेगुलर कोई पे करता है, अगर आपके पास कार्ड है तो आपको 1/3 पे करना पड़ेगा उस पेमेंट का। तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग Ubers and taxis, use public transportation. So this would be my personal suggestion. Then comes the entertainment. Entertainment is something that is totally on you, and what comes in entertainment, it is the Netflix subscription, Amazon Prime, and going out for the movie and buying a subscription for the theater. Like for example, in UK, Odeon Cinemas is the famous, and its monthly subscription is £15, and you can watch limitless movies in that. So that depends on you. Now I'll tell you how you can create this budget. Now you can write down like this would be my expenses, but how you will track this? For tracking, there is an app called Mint, which I personally use, so that I'm just suggesting that it is not a paid collaboration or something like that. Link would be in the description box below. आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कैसे वो ऐप काम करता है। और इसमें क्या होगा, आपको सारे जो आपने एक्सपेंसेस नोट डाउन किए हैं उनको आप एस्टिमेट नहीं ले सकते। आपको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, एक मंथ आपको देखना पड़ेगा कि हर सिटी का डिफरेंट बजट होता है। मैं आपको अपना बजट दे दूं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि लंदन इज फार मोर एक्सपेंसिव देन लिवरपूल, या फिर लिवरपूल और मैनचेस्टर में करें तो वहां पे भी। सो सबको अपना, जब आप किसी सिटी में रह रहे हो तो आपको खुद का पर्सनल बजट बनाना पड़ेगा, एंड द मिंट ऐप इज गोइंग टू हेल्प यू टू कीप यू
कीप यू ऑन ट्रैक, लाइक इट विल टेल यू कि इतना बजट हो गया, इतना रह गया, तो उसमें आपको माइंड में रहेगा कि ओके मैंने बाहर 2 बार ही जा चुका हूँ तो अब मेरे को बाहर नहीं जाना, एंड आई विल अवॉइड। तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको यहाँ पे आके अपना सारा नोट डाउन करना पड़ेगा, कितने एक्सपेंसेस लग रहा है, कितना आपको ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लग रही है, कितना आपका रेंट जा रहा है, तो ये सब कंबाइन करके आपका बजट बन जाएगा। दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। जब मैंने बजट अपना तैयार किया तो मेरे को माइंड में अब पता होता है कि भाई हाँ मुझे बाहर जाके इतने ही एक्सपेंसेस करने हैं, तो उससे आप सेव भी ज़्यादा कर पाओगे। सो दिस वॉज योर फर्स्ट थिंग, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड पॉइंट. So guys, second point is take advantage of all the offers which is provided by the university, the city, and all the offers which you indirectly have as an international student. So keep that in mind. First of all, whenever you go outside in the city, keep your student ID card. For example, if you are going in any cafe, if you ask that I am a student, they will definitely provide you 10% student discount. Second thing, and the most important thing, is that there are 2 apps, Student Beans and UniDays. These apps are so good guys, trust me, मैंने खुद इनसे शॉपिंग की है, सब कुछ मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और ये आपको इतने सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट रियली हैपेंस इज यू हैव टू साइन इन दीज एप्स थ्रू योर इंस्टीट्यूशंस ईमेल आईडी। हर एक यूनिवर्सिटी आपको एक पर्सनलाइज ईमेल आईडी देती है, उसके थ्रू आपको साइन इन करना है। दे वेरीफाई दैट ओके यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, देन यू कैन एक्सेस ऑल द ऑफर्स. Whenever you will go on the UniDays or for example Student Beans app, there will be a section like for example आपको किसी ब्रांड की शॉपिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल H&M से आपको कुछ लेना है, तो H&M के आप उस पर ब्रांड पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको सारे ऑफर्स दे देंगे कि UniDays आपको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है. जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दैट, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द वेबसाइट ऑफ H&M and you just buy and your voucher will be applied and it is really genuine. कोई इसमें फ्रॉड नहीं है. जैसे ही आप जितना डिस्काउंट वहाँ पे दिखा रहे हैं आपको उतना मिलेगा भी. तो मैंने उसमें काफ़ी सेव किया है, आप भी सेव कर सकते हो. इन दोनों ऐप्स के मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इंटरफेस दिखता है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द यूनिवर्सिटी, व्हाट योर यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग. ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होती. इंस्टेड ऑफ लाइक स्टडीज़ के अलावा और क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी जिससे आपका काम आसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल माई यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग MS Word, Excel, PowerPoint, everything for free and I have the storage of 1 TB on like I have a drive storage. तो जितने भी मेरे असाइनमेंट्स वगैरह हैं सब कुछ मेरे को अपने लैपटॉप पे काम करने की जरूरत नहीं है या फिर मेरे को लैपटॉप पे सेव करने की जरूरत नहीं है. मैं डायरेक्ट वो ड्राइव पे अपलोड कर सकता हूँ और मेरे को जितना यूज कर रहा है Excel, Word, PowerPoint और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो सब मैं यूज कर सकता हूँ और अपना काम सारा क्लाउड पे ही स्टोर करके रख सकता हूँ. तो ये एक एडवांटेज है. वरना आप सोच सकते हो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े Excel, Word वगैरह तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगी. सो ये कीप इन माइंड, आपको सारी चीजें पता हो. सेकेंड थिंग विच माई यूनिवर्सिटी इज गिविंग इज फाइनेंशियल टाइम्स सब्सक्रिप्शन एंड इट इज द बेस्ट न्यूज आर्टिकल विच यू कैन गेट. तो फाइनेंशियल टाइम्स का भी हमें फ्री सब्सक्रिप्शन मिलती है. थर्ड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी टिल नाउ इज द ब्लूमबर्ग्स मार्केट कॉन्सेप्ट्स and which is free for the students of University of Liverpool because ये जो प्रोग्राम है ये आपको भी अगर जिसको पता हो ब्लूमबर्ग के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सॉफ्टवेयर है आप यूज़ करने के लिए भी, और ये अगर फ्री में मिल रहा है तो यू शुड यूटिलाइज ऑल द थिंग्स विच योर यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग. सो इन सब चीज़ों से आपके मनी सेव हो सकते हैं. फॉर मी ऑल्सो आई सेव्ड अ लॉट फ्रॉम दीज वेबसाइट थ्रू यूनिवर्सिटीज. एंड द लास्ट थिंग, यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे फेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक. तो उस टाइम काफ़ी सारी कंपनीज आती है, आपको फ्री में चीज़ें देती है. डोमिनोज पिज़्ज़ा खिलाता है फ्री में एंड आपको वाउचर्स और कूपन्स इतने सारे मिलते हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगे. फॉर एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट्स 40% डिस्काउंट, सैटरडे नाइट फ्री. तो वो सब आपको पता होना चाहिए और आप वहाँ पे जब जाओगे जब भी आपको पता चलेगा और आप उन चीज़ों का यूज कर सकते हो. मैं तो भाई जब भी कोई फेयर होता है जैसे सितंबर इनटेक आएगा, हम तो फ्री में बस अपना चले जाते हैं, फ्रेंड ग्रुप जाते हैं, जो भी चीज फ्री में उठा सकते हैं अपना लेते हैं क्योंकि फ्री की चीज सबको पसंद आती है. तो ये चीज अपना ध्यान रखना. यू शुड बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी, इन द सिटी. होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ट्राई करता हूँ जेन्युइन कंटेंट दूं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही चीज आपके साथ शेयर करूँ. और शेयर मैं कर रहा हूँ तो आप भी आगे कर दो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अच्छा लगता है ऐसे. सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज कुक योर मील्स एट होम. और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप अगर रेगुलरली बाहर जाओगे, इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू इफेक्ट योर बजट बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ.
और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं पहले से ही कहूँगा कि अपनी कुकिंग स्किल्स अपने अच्छे से लर्न करके आना, क्योंकि यहाँ पे ईटिंग आउट इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक मील भी अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल इंडियन थाली अगर यहाँ पे आप खाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 17 to 18 पाउंड्स। तो आप सोच के देखो, अगर आप 4-5 बार भी चले गए तो फिर 60-70 पाउंड्स आपने सिर्फ खाने पे एक मील पे वेस्ट कर दिया। तो आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स ये एनहांस करके आओगे कि भाई आपको सारा खाना बनाना आता है, तो आपके ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा आपके लिए। सो गाइज, अब आता है आपका इनकम का। अब इनकम के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, पार्ट टाइम जॉब्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे थोड़ा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यस, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है तो कंपटीशन बढ़ चुका है, पहले ये ऐसा सिनेरियो नहीं था, बट अब आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। और आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, आपके काफ़ी काम आएगी। तो क्या होगा, आपके पहले 1-2 महीने में बहुत मुश्किल है आपको पार्ट टाइम जॉब एकदम से मिले। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, जब तक आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, आप अपना बजट प्लान कर सकते हो कि कितना मेरे एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना मेरे ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है। तो वो चीज़ आप यूटिलाइज करो अपना बजट बनाने में। उसके बाद जैसे ही आपको पार्ट टाइम जॉब मिले, जब आप अपनी इनकम से, फिर आप देखो ना कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में है, आप सेव कर पा रहे हैं नहीं है, तो उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए आई टोल्ड यू दैट Indeed and Total Jobs is the best website to find part time jobs. And to find part-time jobs, you should have a better CV. And if you don't know what is the format of CV, because in UK it is a bit different, you can just DM me on Instagram. I'll share that CV format with you guys. और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से इंस्टा पे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डन योर इंटर्नशिप्स, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू गाइज। इंटर्नशिप करो, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप शो करोगे कि यस मैंने ये काम कर रखा है, ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपको पार्ट टाइम जॉब्स उतनी आसानी से मिल जाएगी। एक बार ही आपकी पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो आपका बजट कंट्रोल रहेगा, आपके एक्सपेंसेस आपको पता होंगे, आपकी इनकम आपको पता होगी, प्लस में आपको सेविंग्स के लिए आपको सेविंग्स करनी है, आपको घर वापस भेजने हैं पैसे, वो सब आप कर पाओगे। So guys, now we come to the last part of this video, which is savings. What you should do for your savings. Now the thing is, if you don't have any obligation, like you have to send the money back to your home, so I would suggest that you should invest your money as much as you can. Because guys, this is the best time, like in early 20s, if you are investing, this is going to help you in the late 40s, 35s. Because investing, when you invest more, you get into the habit that you don't want to waste money, because you know the power of investing. After certain years, you know how much is the compounding, what is the compounding effect of investing. One last thing, that people think that they will invest in UK market, US market. I know UK and US market is good, but the thing is, UK and US is already the developed nations. They have the good infrastructure, they have everything what their citizens need. But it is the time for Indian stock market now, and I personally think, I've also invested, I know what is the power of Indian market, and as India is growing, of course Indian stock market will also grow. So that's why I would like to suggest that please invest. It totally depends on you, and I would not say that I won't give any suggestion that you should invest in this company or that, because before investing you should know the fundamental analysis and the technical analysis for the particular company or stock. So that I won't suggest. I will also be adding the link in the description. If you want to invest in Indian stock market, there would be a link for the Grow app and certain upstocks and all. I'll give you the links. And if you want to invest in UK market, I'll give you 2-3 best trading apps in UK, so you can open your account through that also. Hope so guys, you would have liked this whole video and the information which I gave. See, the thing is, if you like the content, please in the comment section you can tell me that how was the video. Please give me the feedback so I can improve myself. So I want to keep my content quality up to the mark, and I don't want to give you any false information. मेरे पास कुछ कोलैबोरेशन के लिए भी आता है कि ये बैंक का प्रमोट कर दो, ये कर दो, बट मैं नहीं करता, क्योंकि मैं वो चीज़ खुद यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं आपको क्यों प्रमोट करने के लिए कहूँगा। एम्बर स्टूडेंट के लिए मैंने क्यों कहा था, क्योंकि मैंने खुद एम्बर स्टूडेंट से अकोमोडेशन बुक की है, मुझे पता है उनकी फैसिलिटीज़ कैसे है, उनका प्रोसेस कैसा है, सब कुछ आसानी से करते हैं वो, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। तो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको कुछ पर्सनल CV चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।
सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सिर्फ 1 सेकंड लगती है यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो सबको जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय गाइज। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to